And so let us extend the unit of that measurement. So the measurement of length, mass and time. So these three fundamental quantities, these are related to your 11th syllabus. So हमारा सारा फोकस जो है उन तीनों के मेजरमेंट पे रहेगा. Actually in physics dimensionally we actually study from atoms to universe. This is the range of our study. Sunny atom is the subject of chemistry. This is the subject of physics. So in atom up to electrons and protons and neutrons. So we study in this range. This is the lower range. So physics में हम lower range तक यहाँ electron, proton, neutron, even that इससे भी नीचे जाते हैं. That is known as the quarks. Quarks is actually the sub particles of electron, proton and neutrons. So हम वहाँ तक नहीं पहुँच रहे, but so far we can say our study is limited to this neutrons, protons and electrons. This is the lower limit, and upper limit, this is the upper limit. So the measurement range of length, mass as well as time, ये तीनों का जो measurement range होगा, that will be from atoms to universe. तो हम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, मैक्सिमम हमें कितना मेजरमेंट लेने की जरूरत है, ये हमारे इस मेजरमेंट रेंज पे आता है. सो मिनिमम से हम स्टार्ट करेंगे, मिनिमम यहाँ पे मेजर करेंगे और मैक्सिमम हम किस तरह से मेजर करते हैं. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ. लेंथ का मिनिमम हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन किया था, दैट इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियस. जब हम फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वी हैव 3-4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस. नेचुरल फोर्सेस में, उसके बाद फिर अननेचुरल फोर्सेस में. न्यूक्लियर फोर्स की जब हमने बात की, तो न्यूक्लियर फोर्स में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस. वन इज वीक एंड सेकंड वन इज द स्ट्रॉन्ग. एंड देयर वी टॉक अबाउट द रेंज ऑफ दोज न्यूक्लियर फोर्सेस. एंड देयर वी यूज वन पैरामीटर दैट इज नोन एज 1 Fermi. We use this. This is the range of nuclear force, either strong or weak nuclear forces. So this 1 Fermi, this is taken as equivalent to 10 to the power minus 15 meter. So far let us we can say this is the lower limit of the measurement of length. हम न्यूक्लियर का जो साइज है उस न्यूक्लियर के साइज का मेजरमेंट कर सकते हैं, and this is the lower limit of 10 to the power minus 15. Even that size of protons or neutrons are predicted. अब भाई न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस का साइज जो है वो इस रेंज पे है. तो this 10 to the power 15, this is actually can be taken as equivalent to size of predicted size of. Actually उसको मेजर तो कर नहीं सकते. So this is the predicted size of protons or neutrons. जब हम न्यूक्लियर की साइज की बात करते हैं तो थोड़ा सा उसे बड़ा करना पड़ता है, बिकॉज दैट न्यूक्लियस इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एलिमेंट्स. अगर कार्बन है तो ऑब्वियसली 6 प्रोटॉन्स है, 6 न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे. एंड जैसे जैसे हम हैवी एलिमेंट्स की तरफ जाते जाएंगे, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाता है. सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, साइज ऑफ दैट न्यूक्लियस विल इंक्रीज. So the nucleus, the size of nucleus, this is taken as equivalent to 10 to the power 14 meter. 10 times इससे बढ़ा देते हैं. This is just the range. Exactly हम कह नहीं सकते. So this is in the order of 10 to the power minus 14 meter. This is the size of nucleus. So size of protons and neutrons, that will be in the range of minus 15. This is the lower limit of that measurement of length. And further we increase this size. So this is the size of nucleus, and then we use another unit of length, थोड़ा सा और बड़ा करें, that is in the range of 10 to the power minus 12 meter. Generally used unit I am using here, 10 to the power minus 12 meter. This is known as picometer. So 10 to the power minus 12 meter is the picometer. So 10 to the power minus 15, then generally used, this is known as 1 Fermi. 1 picometer
1 picometer is equivalent to 10 to minus 12 meter. This unit is also used in the measurement of that length, the micro length. And then 10 is for minus 10 meter. This is angstrom. So this is angstrom. It is represented by a dot. A के ऊपर में बिंदु लगाते हैं. This is known as angstrom. So 10 is for minus 10 meter. This is 1 angstrom. Generally, that the wavelength are size of atom. Remember this. This is the size of nucleus. Nucleus का size है. This is the size of atom. Atomic size को हम angstrom पे measure करते हैं. Okay. So the wavelength of light or radiation, it is measured in angstrom. तो जैसे हम लोग सनलाइट का एग्जांपल लेते हैं. So the wavelength of sunlight, this is taken is equivalent to 5500 angstrom. The average wavelength ऐसा बताया जाता है सनलाइट का wavelength कितना होता है. अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो कितना होगा? So that is equivalent to 5500 into 10 to the power minus 10 meter. So generally this type of unit, a comparison, it is used to convert the unit from one to another. हमारा सारा का सारा जो सिस्टम होता है that is SI based system. हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं that is in SI system. So in SI we will use that meter for the measurement of length. अगर कोई हमें टर्म में अगर कोई दिया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दैट इन मीटर. मुझे यहाँ पर वेवलेंथ दिया था दैट इज इन एंगस्ट्रॉम. फॉर कैलकुलेशन आई हैव टू कन्वर्ट दिस एंगस्ट्रॉम इन मीटर. देन आई हैव टू यूज दिस कन्वर्सन. 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 meter. So this is 10 to the minus 10 meter. So one can write this is equal to 5.5 into 10 to the power कितना होगा? minus 7. So the wavelength of sunlight can be written as 5500 angstrom in angstrom, and in meter this is 5.5 into 10 to the minus 7 meter. तो जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं, लाइट का वेवलेंथ या फिर वेवलेंथ की बात करते हैं तो हम जनरली ये कहते हैं दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the minus 7 मीटर. जैसे यहाँ पर मैंने कहा ना कि साइज ऑफ दिस न्यूक्लियस इज 10 to the minus 14 मीटर. वैसे अगर वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ इन मीटर, दैट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the minus 7 मीटर. इसीलिए क्योंकि जब कैलकुलेट करते हैं तो इस रेंज पे आते हैं. So this is angstrom. One can measure the size of atoms and also the wavelength. And then थोड़ा सा और इसके साइज को बढ़ाएं. So that is 10 to the power minus 9 meter. This is actually known as 1 nanometer. So this is 1 nanometer, nm. So the nanometer is 10 to the minus 9. This is the age of nanotechnology. Various places तुम लोगों ने टर्म सुना होगा, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मटेरियल्स. नैनो कार का इससे कोई लेना देने नहीं. So that nano technology, nanometers, nano range, that is actually in the order of 10 to the minus 9 meter. So जब कभी हम कहते हैं कोई नैनो पार्टिकल्स की जब रेंज की बात की जाती है तो दैट नैनो पार्टिकल्स आजकल एक रेंज इस पे है, नैनो पार्टिकल. द साइज ऑफ दैट पार्टिकल इज इन नैनो रेंज. सो इफ द साइज इज फ्रॉम 1 to 100 nanometer in general, this is the general definition of nano particle. जब किसी पार्टिकल का साइज 1 से 100 नैनोमीटर्स के रेंज पे आता है देन दैट पार्टिकल इज नोन एज नैनो पार्टिकल. तो अगर कहीं पर अगर कहा जा रहा है कि नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, नैनो पार्टिकल बेस्ड डिवाइसेस है, नैनो पार्टिकल बेस्ड मेडिसिन हैं, आजकल नैनो मेडिसिन की बात की जाती है. सो नैनो पार्टिकल बेस्ड मेडिसिन है, मतलब वहाँ पर जो भी पार्टिकल यूज़ किया जा रहा है दैट पार्टिकल इज इन द रेंज ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर. दैट्स व्हाई दिस इज नैनो पार्टिकल. सो कहीं पर इवन दैट द वेवलेंथ कैन बी मेजर्ड इन नैनोमीटर. कहीं पर किसी इसमें नैनोमीटर में भी तुम्हें वेवलेंथ दे सकता है. तो चलिए, सो द रिलेशन बिटवीन एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर क्या होगा कैलकुलेटेड. द रिलेशन बिटवीन
1 nanometer and 1 angstrom. क्या रिलेशन होगा निकालो, चलो देखें. लेट्स चेक योर मैथमेटिक्स. So 1 nanometer it is equivalent to 10 to the power minus 9 meter. 1 angstrom that is equivalent to 10 to the power minus 10 meter. तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? So 1 nanometer 1 nanometer upon 1 angstrom is equivalent to 10 to the power 1 डिनोमिनेटर पे 10 to minus 10 है ना. So अब उसके हिसाब से वहाँ पे कन्वर्सन कर लो. So 1 angstrom that is equivalent to 10 to the power minus 1 nanometer. सिंपल, जब कभी वैसे कन्वर्सन की बात आती है तो ऐसे सिंपल से लिख लिया करो. लिखने के बाद बीच में एक लाइन खींच करके, है ना, जो भी कैलकुलेशन पावर का कैलकुलेशन कर लियो और पावर का कैलकुलेशन करके लिख सकते हो. कहीं पर कोई ऐसा कंफ्यूजन जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना, कि सोच रहे हो पता चल रहा है. जस्ट यू राइट 1 angstrom is equivalent to 10 nanometer. तो सनलाइट नैनोमीटर में वेवलेंथ कितना होगा? सो द वेवलेंथ ऑफ सनलाइट दैट इज इक्वल टू 5500 एंगस्ट्रॉम. इसको नैनोमीटर बताओ. सो 515 नैनोमीटर. 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 to minus 1, मतलब 0.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. सो दिस इज जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 10 to minus 1. सो 10 to minus 1 से मल्टीप्लाई करने पर एक जीरो यहाँ से गायब हो जाएगा. यू विल हैव दिस 550 नैनोमीटर. तो बहुत बार वेवलेंथ जो है वो तुमको नैनोमीटर में दे सकता है, एंगस्ट्रॉम में दे सकता है ना. इस तरह के भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे कंपटीशन में, द रिलेशन बिटवीन एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर. तो कंफ्यूजन जैसे कोई बात नहीं होनी चाहिए. सो इवन दैट यू शुड हैव द रेंज ऑफ विजिबल, द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट. जो विजिबल लाइट हम लोग जनरली जो देखते हैं उसका अपने एक वेवलेंथ रेंज होता है. एंड दैट वेवलेंथ इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4400 आई शुड राइट 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम. If you want to write this in nanometer, then this is 400 to 480 nanometer. एक 10 कम हो, एक 0 कम हो जाएगा. So now 10 to the power minus 6 मीटर, 10 to minus 8 तक पहुँच, 9 तक पहुँच गया था. उसके बाद फिर नेक्स्ट रेंज आता है, थोड़ा सा और बढ़ा है. हाँ, that is 10 to minus 6 meter. This is known as 1 micrometer. 1 micrometer, micron. So this is 1 micrometer. Mu m. This is mu. इसको mu पढ़ते हैं, ग्रीक वर्ड. So in electronic devices, माइक्रोमीटर रेंज पर कार्य करता है, माइक्रोन पे कार्य करता है. इवन दैट द सेल्स के जो साइज होते हैं ना, टिश्यूज और सेल्स के जो साइज के बारे में बात की जाती है इन जनरल, दैट इज इन माइक्रोन्स. माइक्रोस्कोप जो टर्म है, हम लोगों ने टर्म आता है ना, दैट इज द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप, स्कोप मीन्स होता है जस्ट ऑब्जर्वेशन, देखना. माइक्रो, तो माइक्रो रेंज का ऑब्जर्वेशन हम जिस इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं दैट इज एक्चुअली द माइक्रोस्कोप. इसको इसलिए माइक्रोस्कोप कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर हम जो भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं दैट ऑब्जर्वेशन इज इन दिस माइक्रोमीटर रेंज. और जनरली माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन हुआ था दैट इज टू ऑब्जर्व दैट टिश्यूज एंड सेल्स इन बायोलॉजी. बायोलॉजी में तुम लोगों ने हुक्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा. हाँ, जिन लोगों ने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया है. So microscope का जो invention है that is to observe that tissues and cells, and the observation range is in the 10 to minus 6 meter, that is 1 micron. इसको 1 micron भी कहा जाता है. माइक्रोमीटर कहा जाए या माइक्रोन कहीं पे लिखा होगा. 1 micron. This is 10 to minus 6 meter. कहीं पर अगर कोई माइक्रोमीटर में कन्वर्ट लिखा गया है तो तुमको जब कन्वर्ट करना होगा देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 10 to minus 6 in meter. इसको तो जानते हो. दिस इज 1 millimeter mm.
10⁻², 1 centimeter. ये जनरल नोन ऑब्जर्व मेजरमेंट है. एंड 10⁻1 meter, 1 meter, that 1 meter is 1 meter. Okay, यहाँ से 10⁻², 10⁻3 ऐसा ही. डेका एंड डेसी, हाँ ऐसा कुछ एकदम. चलिए 10⁻1 को जनरली इसका यूज नहीं होता. डेसी, डेका, ये थोड़ा सा अब यूज में नहीं है, फैमिलियर नहीं है. वी जनरली वी यूज दिस 10⁻2, 10⁻3, these are the familiar unit. But deci, deca, so you can just write that. So that is 1 dm, decimeter, like that. decimeter हो गया. So ये मेजरमेंट रेंज के लिए अब तो देखिए हम, मैंने जैसे यहाँ पे कहा कि माइक्रोमीटर ऑब्जर्वेशन के लिए भी यूज दैट माइक्रोस्कोप. तो वहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेशन होता है दैट माइक्रोमीटर, जब मेजरमेंट की बात आती है तो वहाँ पर माइक्रोमीटर स्क्रू होता है. तो बेसिकली दैट माइक्रोमीटर स्क्रू वो उस रेंज पे मेजर कर सकता है. इवन इस रेंज पे मेजरमेंट के लिए, सेंटीमीटर या मिलीमीटर रेंज में मेजरमेंट के लिए वी यूज दैट इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज स्क्रू गेज. एक इंस्ट्रूमेंट होता है. एंड वर्नियर कैलिपर्स, नाम सुने? देखिए भी 10th क्लास वगैरह में इसका एक्सपेरिमेंट कराया जाना चाहिए एज पर माय एक्सपेक्टेशन. So this is screw gauge and vernier calipers type the instruments are used to measure in this range. जैसे छोटे से बाल का आपको रेडियस निकालना है तो या तुम्हारे इवन दैट पेन का रिफिल है उसका तुमको डायमीटर मेजर करना है तो उसको तो ऐसे स्केल में अपन ये करके देखेंगे तो उसमें एरर की पॉसिबिलिटी है. तो उस केस में वी यूज सच टाइप ऑफ डिवाइसेस. सो स्क्रू गेज क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, हाउ इट इज वर्क, है ना. ये तुम्हें थोड़ा गूगल करके देखना चाहिए. सो ज़रूरत पड़ेगी कहीं पर तो वी विल डिटेल इट. देन अब थोड़ा सा बड़े मेजरमेंट पे जाते जाए. हम 1 मीटर तक पहुंच गए. अब दूसरे डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं, किलोमीटर. ओके, सो 1 किलोमीटर अब तो जानते हैं 10 to the power 1 kilometer, that is 10 to the power 3 meter. जनरली डिस्टेंस व्हीकल वगैरह का जब स्पीड वगैरह की बात की जाती है तो वो किलोमीटर्स पर रहता है. तो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 3 मीटर, 1000 मीटर. यानी अब ऑर्डर में लिखने की ऐसा 10 to the power में लिखने की आदत डाल के रखो, है ना. 1000 ऐसा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है. देन 1 मेगा मीटर. माइक्रो का जस्ट उल्टा है मेगा. इधर माइक्रो होता है, इधर मेगा होता है. दैट इज 10 to the power 6 मीटर. ये मेगा टर्म ऐसा है, जनरली मैं जितने भी प्रीफिक्स यूज कर रहा हूँ आप उसको हर इसमें यूज कर सकते हो. यहाँ पर चूंकि लेंथ का था तो दैट मेगा मीटर मीन्स 10 to the power 6 मीटर. अगर सेकंड टाइम के बारे में अगर कोई बात करें तो 1 मेगा सेकंड तो 10 to the power 6 सेकंड ऐसा. तो ये प्रीफिक्स कितना रहता है, बुक्स में एक लिस्ट दिया रहता है कि कौन सा प्रीफिक्स यूज करने से कितना पावर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है. तो दैट 1 मेगा किलो, यहाँ पर किलोमीटर है ना, दैट किलो मीन्स 10 to the power 3. तो उसमें किलोमीटर हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है. तो मास के जब हम मेजरमेंट करेंगे तो दैट इज किलोग्राम. तो किलोग्राम में 10 to the power 3 ग्राम. यहाँ पर मीटर है 10 to the power 3 मीटर. तो यहाँ पर मेगा दैट इज 10 to the power 6 मीटर. मेगा ग्राम ऐसा अगर कोई लेना होता तो 10 to the power 6 ग्राम. देन और बड़ा यूनिट, so that megameter, kilometer and now a very big unit जैसे हम जिसका हम इस्तेमाल करते हैं that is light year. लाइट ईयर का टाइम से कोई लेना देना नहीं. ईयर मतलब ऐसा नहीं कि दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ स्पेस, दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम. ईयर बोलने से लगता है कि यूनिट टाइम का यूनिट होगा, बट दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ. And this 1 light year is actually defined as the total time, total length
covered by light to travel in 1 year. एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको एक लाइट ईयर कहा जाता है. अब यहाँ पर दोनों टर्म आ रहा है, वन लाइट, सो इट इज करस्पॉन्डिंग टू लाइट. दिस इज ईयर, करस्पॉन्डिंग टू ईयर. तो एक कंप्लीट ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, सो दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये है. अब ये तुमको तुम्हारे पास कैलकुलेटेड होना चाहिए कितना होता है इसकी वैल्यू. चलिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट इज, एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट. पर सेकंड कितना मीटर वो ट्रेवल करता है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं. तो एक सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, इट इज ट्रेवलिंग, इट इज कवरिंग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. तो एक सेकंड में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है. सो 1 ईयर इसमें कितने सेकंड होते हैं ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी. दिस इज द पार्ट ऑफ टाइम मेजरमेंट नाउ. तो चलिए निकालते जाओ. सो 1 ईयर इट इज इक्वल टू 365 डेज प्लस इसमें और कुछ आवर्स और होते हैं. हाँ, 6 आवर्स. यस, 6 आवर्स. हालांकि रफ कैलकुलेशन में इसको भी लेकर के लोग काम चला लेते हैं, बट जब सेकंड की बात आती है तो हम इस 6 घंटे को अवॉइड नहीं करना चाहिए. 6 घंटा बहुत होता है, सेकंड में उसको कन्वर्ट करोगे तो, है ना. तो दिस इज 365 इंटू, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स प्लस 6 आवर्स. यूनिट आइडेंटिकल करते जाएं, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके इससे जोड़ो, जल्दी फास्ट करते जाओ. देन 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. ये मिनट्स में आएगा. देन इसको फिर मल्टीप्लाई करना 60 से, कितना सेकंड, बस खत्म. इतने इस रेंज पे है. चलो जल्दी कैलकुलेट कर बताओ. होता है, यू हैव टू कैलकुलेट एंड देन मल्टीप्लाई दिस बाय दिस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. एंड देन 1 लाइट ईयर इज नाउ इक्वल टू, so 1 light year it is equivalent to 9.46 into 10⁻11 meter. I think so. It's 15. So 9.46 into 10⁻15 meter. So this is used to measure the distance of planets, galaxies, astronomical objects. एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर का, स्टार्स के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर्स के डिस्टेंस. एक और यूनिट होता है बिटवीन, दैट इज नोन एज, ये कर लोगे ना, आई थिंक यू कैन, यू शुड, यू मस्ट हैव इन द वैल्यू ऑफ दिस 1 ईयर इन सेकंड्स एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, एंड यू हैव टू रीड दिस 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 into 10⁻15 meter. So one can say, I can say this is your assignment. इसमें फिर कल क्वेश्चन ऑफ द डे में इसको कैलकुलेट करवाऊंगा. So one more unit in is used in astrophysics, that is 1 astronomical unit. Astronomical. ये अभी तक मीटर का ये लेंथ का चल रहा है. अभी तक लेंथ का जस्ट. So 1 astronomical unit, इसको कहा जाता है 1 AU. 1A.U. तो कहीं पर अगर कोई डाटा दिया हुआ है, that is in AU. AU means astronomical unit. So this is actually equal to the distance between Sun and Earth. So the distance between Sun and Earth is nominated as a unit that is known as astronomical unit, AU. And the distance between Sun and Earth is, generally it is taken as 1.5 into 10⁻11 meter. लेकिन exact value is in some points, so 1.49 into 10⁻11 meter. So mathematically it is used in 1.5 into 10⁻. एक और यूनिट होता है, that is known as 1 parsec. 1 parsec.
दिस इज द बिगेस्ट यूनिट। अब ये वन कहीं कहीं पर क्वेश्चन अगर पार्सेक को लाइट ईयर के साथ कोरिलेट करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज दिस 1 पार्सेक। दिस इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ आवर अर्थ। सो इफ दिस इज द अर्थ and this is the diameter of our earth, if this is any object, if पर अगर कोई object है and the angle subtended by the diameter of this earth, this is the diameter of earth, कोई far object है, astronomical object, stars, galaxies, यहाँ पर दो जगह से देखा गया एंड द एंगल सबटेंडेड बाय दिस इज इफ 1 सेकंड। एंगल का यूनिट तुमको पता होगा, एंगल का यूनिट जो रहता है वो डिग्री में होता है एंड डिग्री के बाद फिर होता है दैट इज मिनट्स। मिनट इज आल्सो द यूनिट ऑफ एंगल एंड द सेकंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ एंगल। ओके, सो ये भी डिस्टेंस के अंतर्गत ही आता है माइन्यूट में। अगर एंगुलर मेजरमेंट अगर कर रहे हो सो द यूनिट ऑफ एंगल, सॉलिड एंगल हमने 2 यूनिट लिया था ना, एक थीटा लिया था दैट एंगल इन रेडियन एंड सेकंड हमने लिया था स्टेरेडियन दैट इज द सॉलिड एंगल। सो ये अगर ये 1 सेकंड के बराबर अगर कोई एंगल है देन दिस डिस्टेंस इज नोन एज 1 पार्सेक। गेटिंग? इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ subtended an angle of 1 degree 1 second at any object, then that distance of that object is known as 1 parsec. This is known as the parallax method. ये एक नाम तुम लोगों को पता होना चाहिए, parallax method। ये मेजरमेंट टेक्निक जो रहता है that is known as parallax method। अब ऐसा क्यों? अरे भाई ऐसा है कि अगर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस अगर मेजर करना है किसी स्टार गैलेक्सीज वगैरह का तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई टेप लगा के मेजर कर सके। कोई तो टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी पड़ेगी। तो एक तरीका होता है कि वहां से आने वाली जो लाइट है उस लाइट का अगर टाइम हमें पता चल जाए तो वी कैन मेजर, बिकॉज दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर लाइट वहां से हम तक कितना टाइम में पहुंच रहा है, we can measure that time, then we can measure distance, but it's not so easy। कुछ वैवलन के बेसिस पे भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, that is the distance measurement, and one measurement technique that is known as the parallax method. This is used to measure the distance of the galaxies, stars and that far object, astronomical object. So first of all, what is this parallax method? बहुत बार पूछा जाता है what is that parallax। तो इसके लिए एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। इफ दिस इज 1 पॉइंट, चलिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ये करके देखो। एक पेन अपने इसमें रखो, है ना, और व्हाट इज दैट पैरालेक्सिस एक्चुअली, इसको समझने के लिए एक पेन को ऐसे इस प्रकार अपने आँख के सामने रखो और इस प्रकार से रखो कि ये जो है वो ओवरलैप में होनी चाहिए, दिखना नहीं चाहिए तुमको। डू इट नॉर्मल, हाँ ऐसा, हाँ दोनों आँख ऐसा बीचों बीच ऐसा रखो, है ना। अब एक आँख को या फिर ऐसा करो, एक आँख बंद करो, है ना, और उसको तुम यहाँ पे ऐसा ये करो कि ये छुप जाए तुम्हारे इससे, ठीक है। अब उस आँख को बंद करके दूसरे आँख को खोलो, डोंट मूव योर हेड। सो द शिफ्टिंग ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। क्या हो रहा है कि एक पार्टिकुलर पोजीशन, पार्टिकुलर एक पॉइंट फोकस पॉइंट रखें, फोकस पॉइंट रखने के बाद इस सब्जेक्ट को हमने रखा, रखने के बाद एक आंख हमने बंद किया, मेजर किया, उसके बाद फिर हम तुरंत इस आंख को अगर कोई बंद करके दूसरी आंख अगर हम खोलते हैं, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट जो है या रिलेटिव पोजीशन जो रहता है वो शिफ्टेड दिखता है। हाँ ये इधर हो गया, इस साइड हो गया। दिस मेथड इज नोन एज द पैरालेक्स मेथड। इसको पैरालेक्स मेथड कहते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, है ना, उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए 2 पार्टिकुलर पोजीशंस पर हम मेजरमेंट लेते हैं। जैसे अगर कोई मून का डिस्टेंस हमें मेजर करना है तो मून का डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या करते हैं कि जनरली दो रिलायबल पोजीशन लेते हैं, दिस इज 1 पोजीशन, दिस इज अनदर पोजीशन। 2 ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर मैं यहाँ पे हूँ, दूसरा ऑब्जर्वर जो है कहीं और पे है, दोनों सेम टाइम घड़ी मिला करके ऑब्जर्वेशन लेते हैं। दिस इज
दिस इज मून, ये मून है, इसका हमें डिस्टेंस मेजर करनी है। तो इसका एंगुलर पोजीशन हम यहाँ से मेजर करते हैं। सो वी जस्ट मेजर द एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। सो इन दिस पोजीशन दिस इज एंगल थीटा 1, यहाँ से मेजर किया। दूसरा, एक व्यक्ति जो वहां पे खड़ा हुआ है दूसरे पोजीशन पे है, हमने वही किया ना, हमारे पास जस्ट वी कैन से दिस इज आवर वन आई, दिस इज अनदर आई। ऑब्जेक्ट जो है, फोकल सब्जेक्ट कुछ और है जिसका हमें डिस्टेंस मेजर करना है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन जहाँ मैं हूँ और जहाँ पे मेरा फ्रेंड है जो सेकंड पोजीशन पे है। इसने भी इसका एंगुलर पोजीशन मेजर किया एंड दिस इज दैट थीटा 2। So the total angle it is measured as theta. This is the sum of this just from geometry, sum of this theta 1 and theta 2. And we have, let's say, one relation that is known as this theta. Theta is equal to arc upon radius. So if this theta is measured, we know this position. मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा दोस्त कहाँ पे खड़ा है, मुझे मालूम है, इनके बीच का डिस्टेंस हम we can measure. If this theta is measured, then this distance, this r can be measured. This r will be this is equivalent to r is let's say this is d, so this is d by r, so r is equivalent to d by theta. So the distance of moon, that is equivalent to r, which is equivalent to d by theta. So here this d will be in meter and theta this is in radian. अब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा in degree and then by using that what is we have this pi radian, it is equivalent to 180 degree. So radian में मेजर किया जाता है, radian में मेजर करके just measure the theta and d, one can calculate this distance. This is known as the parallax method. ये पैरेलैक्स मेथड है। तो यहाँ पर इसी पार्सेक को जब डिफाइन किया जाता है, दैट पार्सेक इज एक्चुअली दैट डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है जहाँ पर हम अर्थ के डायमीटर को रेफरेंस लेते हैं। मैंने कहा था कि यहाँ पर फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड खड़ा है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये हमने पोजीशन फिक्स कर ली, लेकिन इसी पोजीशन को हमने शिफ्ट कर दिया अर्थ के डायमीटर पर। अर्थ के एक सिरे पर कोई व्यक्ति खड़ा है, अर्थ के दूसरे सिरे पर कोई व्यक्ति खड़ा है, मींस दिस इज द बिगेस्ट यूनिट, और दोनों किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और दैट एंगल मेजर थीटा, दिस इज इन 1 सेकंड, देन दिस डिस्टेंस मेजर्ड, दिस डिस्टेंस मेजर्ड इज 1 पार्ट से कितना होता है, ये मैथमेटिकली यू शुड कैलकुलेट। ये एंगल के साथ, क्योंकि डायमीटर, हम अर्थ का डायमीटर जानते हैं, अर्थ का डायमीटर लेना पड़ेगा। यहाँ पर एंगल भी हमने देख लिया, एंगल कितना होता है, एंगल 1 सेकंड लेना है ना। देन दिस जस्ट वी विल यूज दिस फार्मूला, r is equal to d upon theta. d is the diameter of earth, theta is 1 second, so r can be measured. So 1 parsec is actually taken as equal to 3.08 into 10 to the power 16 meter. So 1 parsec is equal to 3.08 into 10 to the power 16 meter. Okay, so this is the range of measurement of length only. वैसे ही मास में तो ये करना पड़ेगा, मास में जब मेजरमेंट लेंगे दैट इज माइन्यूट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, ये तुमको जस्ट ओवरव्यू करके रखना है। ये हो गया, तो मास पे जस्ट मैं सिंपल सा इसमें अपन कर लेते हैं, है ना, बहुत डिटेल करने की जरूरत नहीं है। बट लेंथ इज इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे इसका रेंज होता है। So measurement of mass, so the lowest mass is the mass of electron, lowest mass measured, that
is mass of electron, and this is equivalent to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. This is the mass of electron. So just we can take this, it is in the order of 10 to the power minus 30 kilogram. 31 kg. Yeah, that is in 31 kg, 9.1 यहाँ पर multiplication है, so one can write this is approximately equivalent to 10 to the power minus 30 kg. So the lowest range of measurement of mass is in this range, 31 kg ना, minus 31 minus 31 kg. And the highest range, if you want to calculate, then just we can take that the mass of sun, a mass of galaxy. मैं galaxy level तक अगर हम जाते हैं तो, and one lowest mass measurement unit that is used is 1 AMU. It is used in 1 AMU. One unit used in measurement of mass, that is atomic mass unit. Atomic mass unit is measured to mass of electrons, protons and neutrons. So 1 atomic mass unit, it is defined as equal to 1 upon 12 times mass of carbon 12 atom. So carbon 12 is a stable one. So कोई पैरामीटर फिक्स करना था, तो दिस कार्बन 12 एटम का, एक कार्बन 12 एटम का जो मास होता है उसको 1/12 से जब डिवाइड करते हैं तो जितना वैल्यू आता है दैट इज नोन एज 1 एटॉमिक मास यूनिट. अभी कार्बन एटम का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक कार्बन एटम में वी हैव 6 protons and 6 neutrons. I think you know about this in chemistry. 6 protons and 6 neutrons are there, as well as 6 electrons are there. So these are the 6 electrons. This is the configuration of carbon atom. So the mass of 6 protons and 6 neutrons, and the mass of these electrons are negligible because this is in the order of 10 to the minus 31. But one can say the mass of that atom is actually the sum of mass of protons and neutrons. Nuclear having 99.9% of the total mass is centered at the nucleus. Okay, so 6 plus 6 is equivalent to, that is 12, and the mass of proton is approximately taken is equal to the mass of neutron. So this mass of this carbon atom, C12 atom, mass of C12 atom is actually mass of protons plus mass of neutrons. And how much? How many? This is 6 and this is 6. So 6 mass of protons and 6 mass of neutrons. Even if you want to include that electron, then that is 6 multiplied by mass of electron. That outermost electrons, atomic number 6 होता है. Okay, so the total mass of proton, total mass of neutrons and total mass of electron, अगर इसको सम करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का टोटल मास आता है. इसको नेग्लिजिबल माना जाता है क्योंकि विद कंपेयर टू दिस protons and neutron, this is much less. So the sum of these two. So this is actually equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. ये वैल्यू आता है. So this is 1 atomic. This is actually equal to mass of proton or mass of neutron. Okay. अब हैवी मास आप सेकंड डायरेक्शन पे बढ़ते जाइए. मास जो है किलोग्राम, मेगाग्राम एंड क्विंटल्स वगैरह में, टन्स, इसमें सब बढ़ते जाएगा. यू कैन टेक दैट रेंज फ्रॉम योर बुक. हाँ, इसकी वैल्यू कितना होता है, एंड दैट मास ऑफ आवर अर्थ, हैवी वन. अब इसको कैलकुलेट किया गया, कोई ने अर्थ का मास तो मेजर किया नहीं होगा. सो द मास ऑफ आवर अर्थ इज, don't write that mass of our earth in AMU. AMU is used to measure the mass of atomic, subatomic particles. So
mass of our Earth, that is taken mathematically for the mathematical calculation in the range of 6.4 into 10 power 24 kg. So that is in the range of 10 power 25 kg. मास ऑफ सन अगर कोई ले तो इससे 10 पर 5 टाइम्स से ज़्यादा होता है सन का जो मास होता है या अप्रॉक्सीमेटली 6.4 इज जस्ट इन द रेंज ऑफ 10, सो मल्टीप्लाई करें तो दैट इज इन द रेंज ऑफ 25 अगर रेंज पूछा जाता है तो मास ऑफ सन दैट इज इन द रेंज ऑफ, इससे 10 पर 5 टाइम्स से ज़्यादा होता है, सो दैट इज 10 पावर 30 kg. मैक्सिमम हो जाए तो फिर मास ऑफ दैट गैलेक्सीज, गैलेक्सी में सो मेनी स्टार्स लाइक सन आर देयर इन अ गैलेक्सी, सो दैट मास ऑफ गैलेक्सी आर दैट मिल्की वे, आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे, दैट इज इन द रेंज ऑफ 55 kg. Okay, so the main is the measurement of length and the mass and the time. टाइम तो हम कर सकते हैं सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स, मिली सेकंड्स, नैनो सेकंड्स. सो वो जो प्रीफिक्स जो हम यूज़ करते हैं, हाँ वो प्रीफिक्स यूज़ करके हम टाइम के मेजरमेंट में कर सकते हैं. सो टाइम के मेजरमेंट में एटॉमिक क्लॉक्स वगैरह यूज़ किया जाता है. सो हाँ देखते हैं उसको एक एक क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे. सो द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द एरर्स इन मेजरमेंट एंड देन सिग्निफिकेंट नंबर्स. I think this is sufficient for the today's class. एक बार रिपीट करके जितने चीज़ मैंने बीच में छोड़ा है ना, वो कैलकुलेट करके देख लेना. मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने ब्लाइंडली मुझ पर भरोसा मत करो, मिस्टेक भी हो सकता है. सो कहीं पर मिस्टेक होता है तो यू हैव टू करेक्ट योरसेल्फ, ट्राई टू करेक्ट. ओके, थैंक यू.